Hello students, we will continue with this fourth video of fourth chapter OC. Mode of payment पे पहुंचे थे हम. Mode of payment can be different in online shopping. सबसे पहले कैश और डिलीवरी, वो तो सबसे इजी है. In this way, customer has to make the payment of money on receiving goods at his address mentioned for delivery. मतलब हमारे घर पे अगर हमने ऑर्डर किया है तो घर पे जब गुड्स आएगा तब हमें कैश देना पड़ेगा. दूसरा चेक. ऑनलाइन सेलर can collect check from the customer. A person who buys goods issues a check to the seller. The seller dispatches goods only after the check is credited to his account. मतलब जब चेक का पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा तभी वो आपको गुड्स की सप्लाई करेगा. तीसरा है नेट बैंकिंग ट्रांसफर. ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे. Bank also provide facilities of making payment or transferring money through internet to the customer in recent times. In this process, the customer transfer necessary amount from his bank account to the account of the seller. Goods are dispatched only after the amount is transferred. जब हम पैसा ट्रांसफर करेंगे सामने वाले व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा तभी वो गुड्स हमें सप्लाई करेगा. फिर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. दिस टाइप ऑफ कार्ड आर कॉल्ड प्लास्टिक मनी. These cards are used in large extent in online shopping. Online shopping में सबसे ज़्यादा यूज होता है. Credit card provider bank provide facility of shopping to the card holder on his credit. मतलब उधार में मिलता है, हमें इसका पेमेंट बाद में करना होता है. An amount to be paid by the customer to the online shopping seller is paid by the respective bank. Then the card holder make his payment to the bank within a prescribed time. Generally उसको एक आध महीने का टाइम दिया जाता है. Generally the card holder gets freedom of payment by installment. मतलब कई बार आप उसमें EMI भी करवा सकते हैं और at his convenience within the prescribed limit. जो लिमिट दिया है कार्ड की, जो लिमिट होता है उसके हिसाब से हम पेमेंट कर सकते हैं. Debit card holder is provided facility of online shopping up to the existing credit balance of his account. जितने अकाउंट में पैसे है उतनी हम शॉपिंग कर सकते हैं. As soon as the online transaction is done through debit card, the same amount is debited from the bank of the card holder. मतलब हमारे अकाउंट में से उतना पैसा रिड्यूस हो जाएगा. अब डिजिटल कैश जिसमें मोबाइल वॉलेट वगैरह आता है. दिस इज वन टाइप ऑफ करेंसी विच एग्जिस्ट ओनली इन द साइबर स्पेस. मतलब इंटरनेट की दुनिया में there is no physical existence or form of this type of currency, but bank provide a facility to customer to use his real currency in electronic form. The customer has to pay the same amount of real money as digital cash to the bank. Then bank maintaining form of e-cash send a special software to the customer. Digital cash can be received through the account of the customer. Digital fund can be used for online shopping. जैसे पेटीएम वगैरह है सब. अब ऑनलाइन में सिक्योरिटी या सेफ्टी के भी बहुत सारे इशू है तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन. देर आर मेनी रिस्क इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मनी ट्रांजेक्शन. एक तो रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, रिस्क ऑफ डेटा, रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सीक्रेट डेटा. सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन. For the dispute among the online seller and customer, at times argument from the seller remains that customer has not placed order properly. क्या बोला ध्यान से देखिए. कई बार बायर और सेलर में डिस्प्यूट हो जाता है और उसमें आर्ग्यूमेंट ये निकलता है फ्रॉम द सेलर हमेशा कहता है दैट कस्टमर ने ऑर्डर प्रॉपरली प्लेस नहीं किया था. एट टाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन दैट कस्टमर हैज नॉट प्लेस ऑर्डर ऑल्सो एट ऑल. मतलब कई बार हो सकता है कस्टमर ने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया है. The complaint like non-receipt of goods at place mention or receipt of goods not complying with the required quality remain common in online transaction. मतलब कई बार कंप्लेन ऐसी होती है कि अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं मिला. टू प्रिवेंट दिस रिस्क वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी की पहचान करना. एड्रेस शुड बी डन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट. इसके तो अकाउंट का रजिस्ट्रेशन पहले होता है, वहां आपका वेरिफिकेशन हो जाता है. फर्दर कस्टमर शुड प्रेफर टू परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायबल एंड वेल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट ओनली. मतलब कोई अनजान नई वेबसाइट से परचेज नहीं करना चाहिए. दूसरा, सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन. देयर आर many risks related to data. There are many risks related to data
Important data can be changed or stolen for the purpose of enjoyment or with selfish motive. मतलब कोई enjoyment करने के लिए भी आपके डेटा चोरी कर सकता है, या फिर कोई फ्रॉड करने के लिए सेल्फिश मोटिव से भी कोई आपकी डेटा हैक कर सकता है. यू मे बी फेमिलियर विद द वर्ड वायरस और हैकिंग. वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम. इट क्रिएट्स क्लोन मतलब कॉपी बना देता है, और रेप्लिकास दैट डैमेज द डेटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर डेटा को या कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा है उसको डैमेज कर सकता है या कॉपी कर सकता है. वायरस इंटरप्ट ऑन स्क्रीन प्रिवेंट द कंप्यूटर टू वर्क. कंप्यूटर को काम करने से रोक देता है. इट में डैमेज द डेटा फाइल और होल सिस्टम. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज टू बी यूज टू प्रिवेंट दिस रिस्क. इससे बचना है तो हमें एंटीवायरस कंप्यूटर में या लैपटॉप में रखना पड़ेगा. तीसरा है सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और प्राइवेसी. इंटरनेट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म. वंस द इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड ऑन इंटरनेट मींस इट बिकम पब्लिक. कोई भी यूज कर सकता है. इंफॉर्मेशन सच एज ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड provided during online transaction and many more business information are required to keep confidential while dealing online. हमें secret रखना चाहिए. There are possibilities of misusing information. Customer must change their password periodically. हर 2-4-6 महीने में हमें पासवर्ड चेंज करना चाहिए. तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू खत्म हो गया. अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर पे हम आउटसोर्सिंग पे पहुंचे. पहले आउटसोर्सिंग का मतलब समझा देते हैं. When miscellaneous work मतलब छोटे मोटे काम और process is handed over to other group by business group as per the contract for prescribed time, it is known as outsourcing. ये define है, समझाता हूँ मैं. When miscellaneous work or process is handed over to other group by business group as per the contract for prescribed time, it is known as outsourcing. For example, एक स्कूल है. पहले अगर स्कूल अपना कैंटीन खुद चलाता था तो उसे आउटसोर्सिंग नहीं कहता है, लेकिन इससे स्कूल वालों का काम बढ़ जाएगा. इसलिए क्या करते हैं, स्कूल कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट बाहर की बिजनेस यूनिट को दे देते हैं, जिससे कैंटीन की जिम्मेदारी वो बिजनेस यूनिट पे आ जाएगी, तो उसे कहते हैं आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग इज नेसेसरी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मेन एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी. आउटसोर्सिंग से क्या होता है, आपका वर्कलोड कम हो जाता है, आप मेन चीज पे फोकस कर पाओगे. दस कंपनी आउटसोर्स माइनर एक्टिविटी, छोटी मोटी एक्टिविटी बाहर की बिजनेस यूनिट को दे देता है. कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें कैंटीन यूनिवर्सिटी की खुद की नहीं होती, बाहर की एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देता है. बिसाइड्स दिस सम बिजनेस यूनिट मेक आउटसोर्सिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क मतलब जिसमें मेंटल वर्क होता है. थ्रू इट, रिपीट कर रहा हूँ लास्ट लाइन. Besides this, some business unit make outsourcing of intellectual work even though it is their core activity. मतलब उनका main activity है ना, तो भी वो लोग outsource कर देते हैं. Outsource can be done within the company or outside the company. मतलब हमारे कंपनी के अलग डिपार्टमेंट को दे देते हैं या फिर दूसरी बाहर की कंपनी को. अब इसमें आउटसोर्सिंग दो चीज का, एक तो बीपीओ और दूसरा केपीओ. पहले हम बीपीओ के बारे में पढ़ेंगे. Explanation of BPO. BPO means to get the contractual service to external, sorry गलत पढ़ा मैंने. BPO means to get contractual service मतलब जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है of external company or group to complete special work or process of the company. कंपनी का कुछ काम कुछ वर्क हम बाहर की कंपनी को दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, उसे कहते हैं बीपीओ. एग्जाम्पल, द मेन पर्पज ऑफ द कंपनी दैट वांट टू आउटसोर्स द वर्क ऑफ कॉल सेंटर और डेटा एंट्री इज टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर. बहुत सारी कंपनी डेटा एंट्री का काम या कॉल सेंटर का काम बाहर दे देती है, जिससे उनके खर्चे कम हो जाता है. द मेन रीजन ऑफ पॉपुलराइजिंग ऑफ आउटसोर्सिंग इज दैट ह्यूमन रिसोर्स फॉर सच वर्क आर अवेलेबल एट लोअर रेट इन सम कंट्रीज. जैसे इंडिया में ना आउटसोर्सिंग का काम बाहर की कंपनी से बहुत आता है, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह से, यूरोप से. क्यों? वहां लेबर महंगा है और हमारे यहाँ पॉपुलेशन हमारे यहाँ चाइना में ज्यादा है, इसकी वजह से यहाँ लेबर सस्ता है, इसलिए बाहर की कंट्रीज से आउटसोर्सिंग का काम इंडिया में बहुत आता है. सो द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना हु हैव लार्जर पॉपुलेशन गेट प्रेफरेंस फॉर बीपीओ. मतलब आउटसोर्सिंग का काम इंडिया और चाइना जैसी कंट्री को ज्यादा मिलता है. फिर रिक्वायरमेंट ऑफ बीपीओ. बीपीओ से क्या फायदा है? बीपीओ रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. इससे कंपनी का वर्कलोड, एम्प्लॉयज का वर्कलोड कम हो जाता है. फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेली माइनर वर्क, छोटे छोटे काम का वर्कलोड कम हो जाता है. सो दिस एम्प्लॉयज कैन फोकस मोर ऑन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड कस्टमर्स. मतलब अपने मेन काम पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे.
इसका पहला फायदा कॉस्ट कटिंग, आपके बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाती है। बिजनेस यूनिट कैन रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय आउटसोर्सिंग ऑफ फ्रंट ऑफिस वर्क, मतलब जो दूसरे लोगों की नजर के सामने है, लाइक बिलिंग, परचेसिंग, डेटा एंट्री एंड मार्केटिंग, सर्वे, ये सब काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं। सेकंड, फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क ऑफ द कंपनी, मतलब मेन वर्क पे फोकस कर पाएंगे। मैनेजर्स कैन स्पेशली focus on the principal work, मतलब main work of the company by outsourcing the daily work on of प्रोफेशनल यूनिट। प्रोफेशनल यूनिट अपना काम ये बाहर की एजेंसी को दे देते हैं, जिससे वो मेन वर्क पे फोकस कर पाएंगे। तीसरा, बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, बिजनेस कंसर्न मतलब बिजनेस यूनिट कैन गेट क्वालिटी वर्क बाय आउटसोर्सिंग इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। जैसे आप एक कंपनी चलाते हो और अगर आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट का काम किसी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को आउटसोर्स कर देते हो, तो आपको ना अकाउंटेंट रिक्रूट करना पड़ेगा, ना आपको उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये काम किसी बाहर की सीए फर्म को दे दो, तो जिससे क्या होगा, आपको अच्छी क्वालिटी का वर्क मिलेगा उनसे। चौथा, टू कैटर द डायनामिक डिमांड, कैटर मतलब फुलफिल, जो आज की डिमांड चेंज होती जा रही है, तो वो अलग अलग प्रकार की डिमांड सेटिस्फाई कर सकता है बाहर की एजेंसी। बीपीओ कंपनीज प्रोवाइड फैसिलिटीज टू फुलफिल, कैटर मतलब फुलफिल द एवर चेंजिंग डिमांड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की डिमांड बार बार चेंज हो रही है, तो उसकी डिमांड पूरी करने के लिए, काम करने के लिए कैपेबल होता है बीपीओ। पांचवा, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। बिजनेस यूनिट कैन आउटसोर्स देयर सब्सिडरी फंक्शन, छोटे मोटे फंक्शन, एंड पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स द मेन फंक्शन, लाइक इंक्रीजिंग द सेल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एंड सेटिस्फाई द कस्टमर। एज अ रिजल्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस यूनिट इंक्रीज, इससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये बीपीओ के रिक्वायरमेंट है, उसके एडवांटेजेस आ गए पांच। पहला कॉस्ट कटिंग, दूसरा फोकस ऑन मेन वर्क, तीसरा बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, चौथा टू कैटर द डायनामिक डिमांड, कैटर मतलब फुलफिल, एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब स्कोप, क्या क्या चीजें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। स्कोप ऑफ बीपीओ, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, मतलब जो लोगों की नजर में नहीं आता उसे कहते हैं बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस मतलब जो लोगों की नजर में आ जाता है। इट इंक्लूड इंटरनल फंक्शन ऑफ बिजनेस लाइक बिलिंग, परचेज, डेटा एंट्री एक्सेट्रा। फ्रंट ऑफिस वर्क मतलब इट इंक्लूड कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस लाइक मार्केटिंग, टेक्निकल असिस्टेंस एक्सेट्रा। बैक ऑफिस मतलब जो नजर में नहीं आता, और फ्रंट ऑफिस मतलब जो नजर में आ जाता है। तो यहाँ बीपीओ टॉपिक खत्म हो गया। अब बीपीओ से थोड़ा और हायर लेवल का जो वर्क है उसे कहते हैं केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कंसेप्ट पहले समझाएंगे, फिर रिक्वायरमेंट और उसका फील्ड। केपीओ मींस आउटसोर्सिंग ऑफ नॉलेज बेस्ड प्रोसेस। बीपीओ इज अ वर्क ओरिएंटेड व्हाइल केपीओ इज नॉलेज ओरिएंटेड, मतलब इसमें नॉलेज ज्यादा चाहिए। प्रोसेस रिलेटेड टू वर्क आर फोकस इन बीपीओ। बीपीओ पे सिर्फ, बीपीओ में क्या होता है, सिर्फ वर्क के ऊपर ध्यान रखा जाता है, व्हाइल मोस्टली द प्रोसेस रिलेटेड टू नॉलेज आर फोकस in concept of KPO. KPO includes processes which expect advanced knowledge, जिसमें कुछ खास नॉलेज चाहिए ना, उसमें KPO काम करता है, and skill that are responsible for the development of the company. KPO की वजह से आपकी बिजनेस की डेवलपमेंट होगी। अब उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट 7 है। पहले तो अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल, एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ केपीओ प्रोसेसेस एडवांस स्किल, मतलब प्रोसेसेस उनके पास बहुत ही हाई लेवल की स्किल और टेक्नोलॉजी होता है। ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग हैवीली इन ह्यूमन रिसोर्स, मतलब उन लोग ने अपने स्टाफ को बहुत ट्रेनिंग दी होती है, बहुत नॉलेज दिया होता है एंड ट्रेनिंग। एज अ रिजल्ट बिजनेस यूनिट गेट्स इट्स एडवांटेज एट मिनिमम कॉस्ट, मतलब हमें कम से कम खर्च में उनका बेनिफिट मिलेगा। KPO provides the best result by maximum investment in technique. KPO से हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा क्योंकि उन लोग ने टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट किया होता है। ह्यूमन रिसोर्स एंड सिस्टमेटिकली मेथड, उन लोग ने टेक्निक में इन्वेस्ट किया है, ह्यूमन रिसोर्स मतलब स्टाफ में इन्वेस्ट किया है, सिस्टमेटिक मेथड में इन्वेस्ट किया है, तो उसका फायदा हमें मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा KPO से। दे हैव अचीव्ड एडवांस एक्सपर्टाइज विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्क, मतलब उनके पास एडवांस एक्सपर्ट नॉलेज होता है और एक्सपीरियंस होता है।
दिस प्रोफिशिएंसी ऑफ स्किल गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट टू द बिजनेस यूनिट, ये हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हमें कम इन्वेस्ट करके ज्यादा फायदा मिलेगा केपीओ की सर्विस का। दूसरा, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। Available resource are limited in our business unit. Human resource of unit become free because of outsourcing. मतलब हमने, रिपीट कर रहा हूँ लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स, अवेलेबल रिसोर्स आर लिमिटेड इन ऑल बिजनेस यूनिट, हर बिजनेस यूनिट के पास रिसोर्स लिमिटेड होता है। ह्यूमन रिसोर्स ऑफ यूनिट बिकम फ्री बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग, अगर ये हम काम पहले खुद कर देते हैं, अब बाहर की एजेंसी को दे देते हैं, केपीओ को, तो हमारा स्टाफ थोड़ा फ्री हो जाएगा। दे कैन बी यूजिंग कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करने में उन स्टाफ का हम यूज कर पाएंगे। थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो हम ये केपीओ की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच रिक्वायर्स एडवांस टेक्निकल एक्सपर्टाइज कैन बी सॉल्व इजीली बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग से हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर चौथा, स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शन, मतलब हम मेन वर्क पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे अगर हमने केपीओ को अपना काम दे दिया है। बिजनेस यूनिट कैन पे स्पेशल अटेंशन to the principal function with the help of outsourcing. Example, if the school prefer to outsource work like computer education, canteen facility, stationery facility, then it can pay more attention to the principal work of imparting education. मतलब वो लोग एजुकेशन देने पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। पांचवा, मैक्सिमम यूज ऑफ मनी, इफ आउटसोर्सिंग ऑफ सम फंक्शन इज प्रिफर्ड, अगर हमने कुछ फंक्शन का काम आउटसोर्स कर दिया इन बिजनेस यूनिट, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इट्स कैपिटल फॉर दिस पर्पस, अगर हम आउटसोर्स करेंगे तो हमें उस पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज अ रिजल्ट बिजनेस यूनिट कैन यूज इट्स कैपिटल फॉर मैक्सिमम बिजनेस डेवलपमेंट, मतलब हम अपना कैपिटल बिजनेस के डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। फिर रिडक्शन इन ऑफ एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपेंस इन वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन ऑफ पॉपुलराइजिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग इसलिए तो किया जाता है, इससे हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। Expense of business unit are reduced by doing outsourcing of function like marketing, process, research and development of the company. And सातवां point, reduction in risk, इससे आउटसोर्सिंग से हमारा रिस्क भी कम हो जाता है। मार्केट कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स आर रैपिडली चेंजिंग इन रिसेंट टाइम, मतलब आजकल के जमाने में अलग अलग टेक्निक आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। In course of time, investment made by business unit will be of no use. This risk are reduced by outsourcing. जैसे अगर हम ये काम खुद ही करेंगे और उस पर टेक्नोलॉजी में और मशीन में इन्वेस्ट करेंगे और बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमारा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है या फेल हो सकता है। इसलिए अगर ये हम बाहर की एजेंसी को काम दे देंगे तो हमारा उस पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ेगा और हम उस रिस्क से बच जाएंगे। दिस रिस्क आर रिड्यूस्ड बाय आउटसोर्सिंग। अब सोर्सेज ऑफ केपीओ, पहला तो बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, रिसर्च करने में यूज होता है। लीगल सर्विस मतलब कानूनी सर्विस में, मेडिकल सर्विसेज में, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस में, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनिमेशन एंड डिजाइन, इन सब में आउटसोर्सिंग का काम किया जाता है। तो यहाँ ये फोर्थ वीडियो इस चैप्टर का एंड होता है और ये चैप्टर भी फॉर्मली एंड होता है। तो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ।